Bismillahirrahmanirrahim. First English, then Urdu. My friend Zafar, he is a teacher in our school. He approached me yesterday about 3 o'clock and told that his wife has 3-4 problems. Number one, the face is swollen and there is numbness in the face. I mean, by touching, she doesn't feel anything. Also, the whole body is paining and she feels lazy. So I told him to tell her that to take half liter water and boil half of it and put half normal, and then add organic honey when put in the bowl, and then put 1/8 of a teaspoon of bicarbonate soda, meetha soda, and just drink it hot. Alhamdulillah, she did it, and right after about 15 minutes, all those symptoms, numbness, swelling, every single thing was gone. The reason is in winter people drink very little water or sometimes no water at all. So the blood becomes thick, and when the blood is thick, then it is very, very dangerous for the body. Why? Because the first thing is it contains all the toxins inside, and it cannot circulate in many parts of the body. Why? Because over many blood vessels are so thin that like a hair, and clearly blood will not be able to go through those, and then the skin start paining, the joints start paining, headache starts, and this is the worst case scenario that the numbness and swelling happen. Why? Because this is paralyzed position, because the person is just going to get a stroke, and that stroke is of 3 types. It can be brain hemorrhage, it can have a left hand side stroke, or it can have a facial stroke in which the face become uneven, so which is called laqwa in Urdu. So these things are very, very dangerous and can be avoided by drinking enough water. So many doctors, they say that in winter there is too much pressure on the heart, but that is not the right thing. In actual practice, by drinking less water, blood become thick, and that thick blood is very, very dangerous for the body. So please, I request humbly that to drink at least 2 liter water, and especially in winter, drink hot water, because hot water reaches to every cell of the body. The cold water is just enters in the body, goes to the kidney, and is kicked out. This is the reason that many people complain that when we drink water, we just feel the toilet very quick. So, but if you drink hot water, inshallah, within 3 hours you will not feel the need of toilet. Why? Because it starts going through all the cells of the body from head to toe, and it goes in the cells, make them refresh, take the toxins out, and then kicks out from the body, and you feel very, very fresh. So inshallah, every day you do this at least. The formula I told: hot water, honey, and bicarbonate soda equal to the size of chickpea. Use this every day, 1.5 hours before breakfast. When you use this one, don't eat or drink anything for 1.5 hours or 2 hours or more than that, and then inshallah you will see your skin will shine. Why? Because all the body cells become healthy and skin become healthy, and you will make your skin healthy and beautiful in a natural way. So Zafar Saab, whatever I told you, are you agree with this? Yes. I mean, it really happened yesterday. Yes. Yesterday in the morning, swollen. When wife's face was swollen. Yes, on the one side, and numbness as well, and body pain. And body pain as well. And also laziness. Also laziness. But now, I mean, alhamdulillah, she is 100% okay, but it happened all within 15 minutes. Within 15 minutes. माशाल्लाह. It is fine. अब मैं उर्दू में बात करूँगा कि ये ज़फ़र साहब मेरे दोस्त भी हैं, हमारे स्कूल में टीचर भी हैं. कल ये तकरीबन 3 बजे मेरे पास आए कि मेरी बीवी का जो चेहरा है वो एक साइड उसमें सूजन हो गई है और नमनेस भी हो गई है, यानी कि वो हिस्सा सो गया है, यानी टच करने से महसूस नहीं होता या पिंच करने से दर्द नहीं होता, तो सुस्ती भी आ गई है और पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है. तो मैंने इन्हें कहा कि ये तो स्ट्रोक से, यानी ये जो फालज वगैरह से पहले की कैफियत है वो है. तो इन्होंने कहा फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा जल्दी से उनको कहें कि भाई आधा लीटर पानी ऐसा करें कि आधे लीटर का भी आधा बॉयल करें और आधा उसमें नॉर्मल डालें, और फिर उसके अंदर 1 बड़ी चम्मच चावल खाने वाली जिसको टेबल स्पून कहते हैं वो शहद की डाल के, और 2 चने के साइज़ के बराबर, जो सफ़ेद चना होता है 2 चने के साइज़ के बराबर, या जो छोटी चम्मच है उसका 8वां हिस्सा मीठा सोडा डाल के फ़ौरन पी लें.
अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पिया तो 15 मिनट के अंदर अंदर वो जो सोजन है वो भी ख़त्म हो गई, नमनेस यानी कि वो जो हिस्सा सोया हुआ था वो भी जाग गया, सुस्ती ख़त्म और पूरे जिस्म से जो दर्द थे वो ख़त्म हो गए। उसकी वजह यह है कि सर्दियों में लोग पानी ना होने के बराबर पीते हैं, तो उसकी वजह से जो खून है हमारा गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा खून जो है जिस्म के बहुत सारे हिस्सों में वो गर्दिश नहीं कर सकता, ख़ास तौर पर जिल्द तक नहीं पहुँचेगा, बालों तक नहीं पहुँचेगा, दिमाग तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि हमारी जो खून की नालियाँ वो पतली होते 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 इतनी बारीक हो जाती है जैसे बाल। अब उसमें गाढ़ा खून तो गर्दिश नहीं कर सकेगा, और खून की जो मिसाल है वो हमारे जिस्म ऐसे है जैसे पौधे के लिए पानी, अगर पौधे को पानी नहीं पहुँचेगा तो वो पौधा सूख जाएगा। ऐसे ही फिर हमारे वो जो सेल्स हैं, हमारे जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं वो यानी सोना शुरू कर देते हैं, यानी उनमें फीलिंग ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, और फिर ख़तरा होता है स्ट्रोक हो जाए। तो यानी स्ट्रोक भी 4 किस्म का होता है, एक तो हार्ट अटैक भी एक स्ट्रोक है। तो आपने देखा होगा सर्दियों में लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, फालज, लकवा और जो दिमाग की शरीयान फट जाना जिसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं, ये सर्दियों में क्यों होते हैं? क्योंकि पानी ना पीने की वजह से, सर्दी की वजह से लोग पानी नहीं पीते और प्यास महसूस नहीं होती। लेकिन वो ये नहीं समझते कि भाई प्यास लगे ना लगे, अब हमने पानी पीना ही पीना है। और बाद लोग ये शिकायत करते हैं भाई वो हम जो पानी पीते हैं तो पेशाब आ जाता है। तो उसका तरीका यह है कि आप गर्म पानी पिएं। गर्म पानी आप नोट कर लें, अगर किसी बंदे को ये प्रॉब्लम है कि वो पानी पीते ही उसको टॉयलेट में दौड़ लगती है, तो गर्म पानी पीने से इंशाल्लाह कम से कम 3 घंटे के बाद टॉयलेट में जाना पड़ेगा, क्योंकि गर्म पानी जिस्म के हर सेल के अंदर से होके फिर जाके पेशाब के जरिए खारिज होता है। नॉर्मल पानी जो है वो आप जो ही पीते हैं, आंतों से सीधा खून में गया, खून से सीधा वो गुर्दों में गया, वहाँ से फारग। क्यों कि गर्म पानी, ठंडा पानी जो है वो पूरी हर सेल में गर्दिश नहीं कर सकता, वो यानी सेल के अंदर दाखिल होने की उसके अंदर सलाहियत नहीं है। जबकि गर्म पानी जो है वो प्रेशर के साथ जाता है, हर सेल के अंदर जाता है, और हर सेल से जहरीले मादे निकाल के वो पेशाब के जरिए खारिज होता है, तो आपके जिस्म को सुकून मिलता है, आपका जिस्म जो है तरोताज़ा हो जाता है, हर सेल जो है उसको तवानाई भी मिलती है, उसमें से जहरीले मादे भी खारिज होते हैं, और आपकी स्किन जो है वो चमकना शुरू कर देती है। बुढ़ापे के असरात देर से फिर आते हैं, यानी उसको एजिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ये अपने ऊपर एहसान करें, ये एक आपका अपने ऊपर अजीम एहसान है कि आप कम से कम 2 लीटर पानी पिएं। और ये जो शहद वाला और बाइकार्बोनेट सोडे वाला यानी मीठे सोडे वाला जो फार्मूला है, ये हर रोज़ नाश्ते से तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले करें, और उस दरमियान में कुछ भी इस्तेमाल ना करें, चाहे सोएं या जागें, लेकिन कुछ भी इस्तेमाल ना करें। और ये जो है हर रोज़ इसको अपना मामूल बनाएं, तो इससे आपकी तजाबियत कम होगी, आपके जो इम्यून सिस्टम है जो जिसको कुव्वत मुदाफ़त कहते हैं उसमें इजाफा होगा। और ये सिर्फ एक चीज़ के फ़ायदे के लिए नहीं, बेशुमार चीज़ों के लिए फ़ायदे के लिए है। और हर खाने से पहले तकरीबन आधा लीटर पानी आप गर्म पिएं, खाने से पहले पिएं, खाने के दौरान और खाने के आखिर में कम से कम 1.5 घंटे तक ना पिएं, क्योंकि जब आप खाने के दौरान पानी पी लेते हैं या खाने के आखिर में पानी पीते हैं तो वो आपके एंजाइम के खराज को भी ख़राब कर देता है, यानी बंद कर देता है, और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो यानी क्लोज डाउन हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है। तो इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सेहत अरसा दराज तक बेहतरीन रहेगी। आप ये फिक्र ना करेंगे टॉयलेट में जाना पड़ेगा, सर्दी लगेगी। आप ये देखें कि टॉयलेट में जाना बेहतर है या कि अस्पताल में जाना बेहतर है, या ना हो कि फिर अस्पताल के ऊपर मंजे के ऊपर पड़े रहेगा फिर से तक, और उसमें कितने नुकसान हैं। अस्पताल पहले तो बात है सस्ते नहीं है, दूसरा यह है कि अगर मुफ्त भी अस्पताल हो तो आपकी कितनी कमाई ज़ाया हो जाएगी, यानी बच्चों का पेट पालना है या अस्पताल के बिस्तरे भरने हैं। तो इसके लिए इन गुजारिशात पर अमल कीजिए। और जफर साहब अभी जो मैंने बातें बताई हैं, आप इन सारी बातों से मुतफिक है ना? बिल्कुल, इसमें कोई गलत बयानी या ऐसी कोई बिल्कुल नहीं, आगे पीछे बात तो नहीं ना हुई? बिल्कुल नहीं। तो आइंदा आप भी और आपके घर वाले भी ये फार्मूला रोजाना करें तो इंशाल्लाह असद रात तक सेहत रहेगी। अल्लाह ताला हमारे अमीन नाफिज़ अल्लाह हाफिज़।